السلام علیکم، یہ ہے سچ نیوز اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ آغاز میں آپ کو خبر دیں، کراچی میں طوفانی بارشیں، مختلف حادثات میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 4 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایل میں نالے میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ پنجاب چورنگی انڈر پاس سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ کورنگی کراسنگ ندی سے ایک شخص کی ڈوبی ہوئی لاش نکال لی گئی ہے۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 زندگیوں کے چراغ گل ہو چکے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ موسلادھار بارشوں سے تباہی لاہور میں بند روڈ پر مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 24 سالہ عظمت اور 40 سالہ خلیل کے نام سے ہوئی ہے۔ وزیر آباد کے نواحی قصبہ سودھرا میں موسلادھار بارش کے باعث مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق جبکہ ماں زخمی ہو گئی۔ قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد میں میاں بیوی اور 3 بچے شامل ہیں۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح 1,08,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ملکہ بستیوں کو فوری طور پر حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مختلف مقامات پر 4 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ حالیہ بارشوں سے سوات، اپر چترال، شاہگرام، تیرات کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ حالیہ بارش سے سوات، اپر چترال، شاہگرام، تیرات میں سیلابی ریلوں کے باعث متعدد گھروں کو نقصان پہنچا، جس سے 6 افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ موسلا دھار بارش سے کوہستان میں بھی تباہی ہوئی۔ سیلابی ریلا 19 گھروں کو بہا کر لے گیا، جس میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل ہیں۔ سوات میں بھی بارش کے بعد برساتی نالے میں 3 مکان بہہ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں بارشوں کے بعد لطیف آباد کے علاقے مہر علی کالونی میں بارش کا پانی کئی فٹ تک جمع ہونے سے لوگ چھتوں پر محصور ہو گئے۔ امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج پہنچ کر لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالنے لگی ہیں۔ رپورٹ کریں گے جہاں زیب علی۔ حیدرآباد کے تلکے لطیف آباد کا نشیبی علاقہ مہر علی کالونی میں حالیہ بارشوں سے کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔ گھروں میں 4 سے 5 فٹ پانی بھرنے کی وجہ سے علاقہ مکین گھروں کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے اور گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جبکہ پاک فوج نے امدادی سرگرمیاں سنبھال لی ہیں۔ پانی میں پھنسے بچوں، بزرگوں اور عورتوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے موٹریں لگا کر نکاسی آب کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی حکومتی عہدیدار داد رسی کو نہیں آیا۔ بارش ہوئی ہے اور جو ہے یعنی کہ 2 دن کے بعد جو ہے پاک فوج آئی ہے، آرمی آئی ہے، انہوں نے پاک فوج نے جو ہے ہمارے کو نکالا ہے، انہوں نے مدد کری ہے۔ سارے گھر ڈوبے پڑے ہیں، دوسری بات یہ ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی معاشرہ نہیں ہے، لوگ بیمار پڑے ہیں، ماں بیٹیاں بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، سر پکڑ کے کوئی امداد نہیں ہے۔ یہاں پہ صبح آدمی آئی ہے، لوگوں نے ماشاءاللہ انہوں نے ناشتہ دیا ہے تو کچھ پیٹ بھرا ہے لوگوں کا۔ نہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کچھ۔ آج یہ لوگ آئے ہیں تو ہم لوگ باہر نکلیں، کچھ بچوں کی دوائی وغیرہ، کچھ کھانے پینے کی چیز لے سکتے ہیں۔ غریب آدمی مر رہے ہیں، ووٹ تو لینے کے لیے سارے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ پاک فوج ہے جو ہماری مدد کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے ادھر ہمارے پاس۔ متاثرین نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کی طرح پاک فوج ہی اس مشکل کی گھڑی میں مدد کو پہنچی ہے۔ محکمہ HDA اور منتخب نمائندے سرزمین سے غائب نظر آتے ہیں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ دادو میں حالیہ بارشوں نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شہر کے عام شاہراہیں، کاروباری مراکز اور گلی محلوں میں تاحال بارش کا پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانیں گے شعیب تھیم کی اس رپورٹ میں۔
दादू में बारिशों ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। बारिश के बाद गटरों का पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहर की अहम शाहराहें, कारोबारी मराकज, गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर के मजदूराबाद मोहल्ला, शाहनी मोहल्ला, बुट मोहल्ला, स्टेशन रोड, न्यू चौक, गरीबाबाद, न्यू अल रफीक कॉलोनी, शहबाज कॉलोनी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके बारिश और सीवरेज के पानी में डूब गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन इंतजामिया मंजर आम से गायब है। ये स्टेशन रोड दादू का कारोबारी रोड है, मेन रोड है। यहाँ पर ये दादू का दिल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया नाअहल हो चुकी है, खामोश है, कोई यहाँ पर पानी निकालने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि बारिश को खत्म हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन निकासियाब के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। अब तो सीवरेज का गंदा पानी भी सड़कों पर जमा हो गया है, जिस वजह से शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है। नाकारा ड्रेनेज सिस्टम की वजह से न सिर्फ बारिश का पानी जमा हुआ है, ये गंदी नालियों का पानी भी, गटरों का पानी बाहर निकल आया है, जो सारे रोड को डबो दिया है। और ये जो मेन रोड है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का, जो पीछे गरीबाबाद को मिलाता है, हमें बहुत तकलीफ है आने जाने में। ये सारा बारिश का पानी है और नालियों और इनका पानी अभी तक कोई सफाई सुथराई नहीं हुई। शहर में निकासियाब के लिए बनाए जाने वाला ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने और करोड़ों रुपया की बजट करप्शन की नजर होने के बाद शहरी सख्त अजत में मुब्तला हो गए हैं। शोएब थईम, सच टीवी, दादू। भारत से आने वाले नाला एक और डैक भी बिफर गए। डस्का के मुतादिद देहातों में तबाही मचा दी। नाला एक में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेरे आब आ गई। रिपोर्ट करेंगे नवीद इकबाल। भारत की जानिब से आने वाले और डस्का की हदूद से गुजरने वाले नाला एक और डैक बिफर गए। नाला एक में कोटली मरला के मकाम पर शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से मुल्का इलाकों की सैकड़ों एराजी ज़ेरे आब आ गईं। कोटली मरला से गंजियावाली की तरफ हर तरफ पानी ही पानी हो गया। राब्ता सड़क भी ज़ेरे आब आ चुकी, जिससे मुतअद्दिद देहातों का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। और यहाँ बेशुमार तो ज्ञानी आई हुई है। 2 जगह से बंद टूट गया है एक का, और साथ वाले गांव तकरीबन गंजियावाली, काजीचक, दुलची के, ये सब ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों एकड़ पे खड़ी फसलें धान की तबाह हो चुकी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा कोई मुदाफा करे। सैलाबी पानी से धान, सब्जी, चारा की फसलें मुतासिर हुई हैं। हेड मुराला फ्लड कंट्रोल के मुताबिक नाला एक में इस वक्त 9,826 क्यूसिक का रेला और नाला डैक में 625 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि दरिया चिनाब 3,30,884 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। उधर मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे से बारिश रहने का इम्कान है। इंतजामिया की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। सियालकोट में जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। नाला फलकू के बिफर जाने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। नाला फलकू में पानी की सतह 4,550 क्यूसेक से तजावुज कर चुकी है। पानी के शदीद बहाव की वजह से वर्थ के करीब पूरा पुल पानी में बह गया और नाले का पानी बाहर निकलने से रानीचक समेत मुतादिद देहात पानी पानी हो गए, जबकि वर्थ के करीब नाले का पुल टूट जाने से कई देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। राजनपुर की तहसील रुझान में हालिया बारिशों के बाहिस कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी रेला आबादी की जानिब बढ़ने लगा। कई देहात ज़ेरे आब आ गए, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। राजनपुर, रुझान, जामपुर समेत शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से शहर और दीगर नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। दूसरी जानिब कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से बरसाती नदी नालों में दुगनी आ गई है। रुझान कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में 2 रोज से जारी बारिशों के बायस दराजंगी में दुगनी आ गई है। पानी का बहाव 2 तरफा नवाही इलाका ओजमान और बदली की तरफ तेजी से गामजन है। किसानों की तैयार शुदा फसल प्याज, कपास की फसल सैलाबी रेले में मुतासर होने का खदशा है। दूसरी जानिब राजनपुर के इलाके मीरापुर, लालगढ़, चटोल के मोजात 45,000 क्यूसेक का रेला दाखिल हो गया है। किसानों की खड़ी फसलात को नुकसान इंतजामिया की तरफ से इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी रेला अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरिया सिंध से जा मिलेगा। कैमरामैन मलिक तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज, राजनपुर। मंडी बाउद्दीन में दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। दरिया की करीबी आबादियों और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे इरफान।
जी मंडी बहाउद्दीन में दरिया चनाब में हैड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। हैड कादराबाद के मकाम पर पानी की आमद 2,24,000 क्यूसिक है, जबकि इखराज 2,13,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कादराबाद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया का सैलाबी पानी निशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू अमला अलर्ट छुट्टियां मनसूख कर दी गई है, जबकि रेस्क्यू ने दरिया चनाब पर कादराबाद के मकाम पर 7 फ्लड रिलीफ कैंप काम कर दिए हैं। दरिया की करीबी आबादियों के निशेबी इलाकों जागो कलां, काला शादियां, ठट्टी शाह मोहम्मद, चक अब्दुल्ला, बारी जोकालियां समेत दरिया के किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाई, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कोट अद्दू में मानसून की पहली बारिश ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। मंडी मवेशी तालाब के मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोट अद्दू मंडी मवेशी में बारिश का पानी जमा होने से मंडी मवेशी तालाब के मंजर पेश करने लगी। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मंडी मवेशी की जगह पर पानी खड़ा होने से मंडी रोड पर ही सज गई, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है ये पहली बारिश है जिसकी वजह से ये 2 दिन से पानी मंडी में ठहरा हुआ है और म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से ये पानी ना सफाई की गई है, न पानी निकाला गया, निकासी की गई है। उसके बाद मंडी रोड पे लगा दी गई है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से म्यूनिसिपल कमेटी की असलाह, मंडी मवेशी की सफाई और रोड की बंदिश का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोट अद्दू। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे के सब डिवीजन छोरबट को जाने वाली शाहराह जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मकामी अफराद को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे मोहम्मद अली आलम से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह छोरबट पे। ये जो शाहराह है सब डिवीजन छोरबट जो पाक भारत बॉर्डर पर वाक़े हैं, दिफाई एतबार से भी ये जो शाहराह है बहुत अहमियत के हामिल हैं। उस शाहराह पर बैठा हुआ हूँ। ये जो शाहराह है हर जगह से मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है। इस वजह से लोगों को यहाँ से सफ़र करते हुए शदीद मुश्किलात का सामना है, शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मरीजों को यहाँ से खपलू ले जाते हुए या स्कर्दो ले जाते हुए इस रोड से गुजरते हुए, क्योंकि हर जगह से टूट फूट का शिकार है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी ज़माने में आपको बताता चलूँ कि यह शाहराह छोरबट किसी ज़माने में बहुत ही खूबसूरत शाहराह हुआ करते थे। ताहम 2010 और 2015 में जो फ्लड आया था, इसके बाद ये जो शाहराह छोरबट है हर जगह से टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार हो गया है। हुकूमती नुमाइंदों की गफलत और नाअहली इस बात की सबूत है कि अभी तक इस रोड की मरम्मत के लिए या रिकारपेटिंग के लिए कोई मंसूबा नहीं रखा गया है। यहाँ पर सब डिवीजन छोरबट से हर दौरे हुकूमत में यहाँ से नुमाइंदे इक़्तिदार में जाते हैं, मगर अभी तक इस अवामी इशू पर, इस अवामी मसाइल पर अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी गई है। जी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निकल गया था एक शहर के राउंड पे, मेरी आर्टरीज तकरीबन सारी, मैं नर्सरी जांकल में नहीं जा सका था, मुझे रोक दिया गया था और वाकई उधर बहुत पानी था। मुझे उधर रुका तो एक दुकानदार जो नर्सरी में जिसकी दुकान थी उससे मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि मेरा जो ऊपर बोर्ड जो लगा हुआ था दुकान का, जो कम से कम 12 फुट था ऊपर, उसने कहा 12 फुट पानी इधर तक था, निशान कह रहे था, आप देख सकते हैं। खैर ये वो पानी निकल गया था, उस वक्त हुआ था। उसने दुकान भी खोली हुई थी, नुकसान बहुत शदीद हुआ है, उसका मैं जिक्र करूंगा थोड़ा सा। कोशिश यही की, मैं मलीर भी गया, मलीर बंद में जो सुखन नाले में तुगयानी आई थी और वो ओवरफ्लो कर गया था कुछ दिनों पहले, उधर जो एक बंद को नुकसान पहुंचा था उसको भी रिपेयर किया गया था, वो भी देखने उन लोगों से भी मिला। मलीर में जाके मैं नाज़माबाद की तरफ गया, मैं यूसुफ गोट तक गया वेस्ट में। नाज़माबाद में भी वो आप जब देखते थे। रहीम यार खान के इलाके चुल हमजा में बारिशें ज्यादा होने की वजह से कपास की फसल पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। महकमा ज़राअत मुल्तान के ज़ही माहिरीन ने चुल हमजा समेत तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कपास की फसल को चेक किया है।
जिला रहीम यार खान जरी लिहाज से अपनी मिसालात। कपास पाकिस्तान की अहम रेशादार फसल है। पाकिस्तान दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले मुल्कों में चौथे नंबर पर है। हालिया बारिशों की वजह से कपास की फसल पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से पैदावारी हदफ हासिल करना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसी वजह से महकमा ज़राअत के माहिरीन ने ठोलमजा समेत तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जनूबी पंजाब नवीद असवत ने कपास की फसल को चेक करके काश्तकारों को रहनुमाई की और बरसात की वजह से मुमकिन बीमारियों के तदारुक के लिए अहम मशवरे दिए और काश्तकारों से अपील की कि मकामी ज़री माहिरीन से भरपूर ताउन करें। महकमा की जारी करदा सिफारिशात पर अमल करके फी एकड़ पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठोलमजा। मालाकंड में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली बंदिश के बायस कारोबार ठप होकर रह गए, जिससे शहरी परेशान हो रहे हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद अबरार की इस रिपोर्ट में। मालाकंड के तहसील दरगे में 3 बिजली घर शुमाल को मुख्तलिफ इलाकों को रोशनियाँ मुयसर है, लेकिन यहाँ के अवाम का अपनी बिजली में यही हाल है। हर महीने 10 से ज्यादा रोज परमट के नाम सुबह से शाम तक बिजली बंद की जाती है। हमारे मुल्क में बिजली का ज्यादा बहरान है, खासकर हमारे मालाकंड एजेंसी का इधर बहुत ज्यादा बहरान है। तकरीबन शवारोज में 18% बिजली नहीं होती, 18 घंटे बिजली नहीं होती और सिर्फ 6 घंटे होती है, वो भी वोल्टेज कम है। ज्यादा से ज्यादा 100 में से 25% वोल्टेज होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे 3 बिजली घर हैं और बिजली का बहुत संगीन मसला है। इस वक्त काफ़ी लोग परेशान हैं। गरीब लोग जो हैं वो गर्मी से तड़प रहे हैं। बच्चों को देखे तो आपको तरस आ जाएगा। पता नहीं कि वजह क्या है। 3 बिजली घरों के होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मालाकंड में बिजली की खपत है। तो बराए मेहरबानी अगर है कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसके लिए इसकी तरफ कुछ तवज्जो दें। जिसने आवाम को शदीद कुफियत से दो चार कर दिया है। कारोबार ठप होकर रह गए हैं, पानी नापेद हो गया है। कारोबार आजाद रोजगार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन निज़ार खान के साथ मोहम्मद इब्रार, सच टीवी, मालाकंड। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साहिवाल का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से साहिवाल में वकला, ताजरों, सनतकारों और पार्टी ओहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब के हर शहर का दौरा करके तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा ले रहा हूं। फराह आमा के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला ने साहिवाल को मोटरवे से लिंक करने और रिंग रोड की जल्द तकमील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन का ऐलान किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम का इफ्तिताह भी किया। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जान बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। चकवाल में कलर कहार मोटरवे पर मुसाफिर बस और ट्रेलर में तसादुम से 2 अफराद जान बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। सखर की तहसील पन्नू आकिल में नौजवान ट्रेन की जद में आ गया। रहीम यार खान के इलाके भोंग में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। टोबा टेक्सिंग में झंग रोड पर मोटरवे के करीब कार की राहगीर को टक्कर से एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि मियांवाली में तिलागंग के रोड पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लकी मरवत में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 3 अफराद जान बहक हो गए। और अब जिक्र फौज हुसैनी के अलमदार का। आज हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं। 8 मुहर्रम मंसूब है हजरत अली अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से, जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना अलमदार बनाया। आज जगह जगह इसी अलमदार हुसैनी की याद मनाई जा रही है। अज़ादार 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास से मंसूब करते हैं। शुजाअत ही की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सालार और अलमदार बनाया। उम्मुल बनीन के लाल हजरत अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। वजीह इतने कि अहले मदीना आपको कमरे बनी हाशिम कहते। रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको जंग की इजाजत न दी और बीबी सकीना के लिए फकत पानी लाने को कहा। तीर लगा मश्के सकीना पे जब आ गया होठों पे दम अब्बास का।
मश्क सकीना की हिफाजत करते हुए करबला में नहर फुरात पर हजरत अब्बास अलमदार के दोनों बाजू शहीद हुए। अरे जब अलमदार न रहा तो अब ये आलम सरनिगू हो रहा है। दोनों आलम को लिया, उस पहले आलम को जिससे लहू टपक रहा था दूसरे आलम के फरहेरे में लपेटा, और उसके बाद खैमे में आए बीबियों अब्बास शहीद हो गए। मश्क सकीना छिप गया और खैमों में अलम आया, लेकिन अलमदार न आया। आप अलैहिस्सलाम की शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यूं नोहा किया, अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। टूटी जो कमर शेख की बस दो ही तो सदमे थे, एक फिक्र थी ज़ैनब की और दूसरा गम तेरा। अज़ादार यही अहद करते हैं कि जब तक दिल सीने में है आपका गम नहीं जाएगा। हजरत अब्बास के मशहूर अलकाब सक्काए सकीना, अलमदार करबला, बाबुल हवाइज और कमरे बनी हाशिम हैं। हजरत अब्बास हजरत अली की दूसरी जोजा बीबी उम्मुल बनीन से हैं। करबला में आपके 3 भाई और 4 फर्जंद भी शहीद हुए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा आज भी अहले वफा का किबला कहलाता है। देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। वफा को भी फौजे हुसैनी के अलमदार पर नाज है। यही वजह है कि इमाम बारगाहों और घरों पर हजरत अब्बास की वफा का परचम लहराया जाता है। दिल सीने में जब तक है भूलेगा ना गम तेरा। देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की याद में मुल्क के कोने कोने में मजालिस अज़ा जारी है। जुलूस हाय अज़ा में मजलूम करबला को पुरसा पेश किया जा रहा है। मुल्क के तूल अर्ज में सैयदा अलैहिस्सलाम के लाल के गम में फर्श अज़ा बिछी हुई है। मजालिस में आज जिक्र हो रहा है शहनशाह वफा सकाए सकीना अलमदार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने रहती दुनिया तक वफादारी की नई मिसाल कायम कर दी। बाजू कटवा दिए, मशक छिद गई, लेकिन अलम की इस तरह हिफाजत की कि आज तक ये अलम सरबुलंद है। रोबर्ट एक्सिंग की तहसील गोजरा में 8 मुहर्रम उल हराम की मजलिस मुनक्किद हुई। अलामा मूसा हैदर रिजवी ने फज़ाइल मसाइब अलमदार अब्बास अलैहिस्सलाम बयान किए। उनका कहना था कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत न मिली। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कमर का जोर खत्म हो गया है। इस मौके पर आज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद ने मातम भी किया। भावलपुर की सब तहसील उस शरीफ में अलम पाक का कदीमी और मरकजी जुलूस दरबार हजरत सैयद मखदूम जहानिया से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह गुलाम अब्बास में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर पुरसी पेश करते रहे। रहीम यार खान के इलाका ठर हमजा में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस डेरा मलिक कासिम आंध्रा से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका इमाम मजलूम को पुरसा पेश करते रहे। करबला के प्यासों की याद में सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी के इलाके खानपुर महर में भी 8 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजालिस अज़ादारी और मातम का सिलसिला जारी है। खानपुर महर और गिरदनवाह के मुख्तलिफ इलाकों में शोहदा करबला और प्यासे बच्चों की याद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 20 से ज्यादा सबीलें लगाई गई हैं। चकवाल की इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में 8 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए उलमा ज़ाकिरीन ने हजरत गाजी अब्बास अलमदार के फजाइल और मसाइब बयान किए, जबकि मजलिस के इख्तिताम पर शबीह अलम गाजी अब्बास अलमदार बरामद हुआ। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में 8 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा से ज़ाकिर अमीरुल हसन कालमी, ज़ाकिर वसीम आवाज़ बलोच ने खिताब करते हुए हज़रत गाजी अब्बास अलमदार के फज़ाइल और मसाइब बयान करते हुए कहा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वफा का पैकर, अदब, शुजाअत और सखावत का मज़हर हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की आज़ादी, अदल और इंसाफ के फ़रोग़, लोगों की फलाह बहबूद, कुरानी अहकाम की नशर व इशाअत और पूरी इंसानियत को जिल्लत के गड़े से निकाल कर इज्जत और शर्फ और सादत दिलाने के लिए अपने भाई व आका हज़रत इमाम हुसैन
حسین علیہ السلام کی طرح شہادت کو اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ عباس نام ہے وفا کا. انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ جس کے ذریعے حقیقی اسلام اور خود ساختہ اسلام میں فرق واضح ہو گیا. مجلس کے اختتام پر ذاکر وسیم عباس بلوچ نے شہادت حضرت غازی عباس علمدار بیان کی جس پر عزاداروں نے گریہ کیا اور پرسہ پیش کیا، جبکہ مجلس کے اختتام پر شبیہ علم غازی عباس علمدار بھی برآمد کیا گیا. مجلس کا اہتمام متولی چودھری اظہر عباس نے کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجا ثاقب عباس، سچ نیوز، چکوال. دین اسلام کو بچانے اور امت کی بیداری کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کربلا کی تحریک کے پیغام، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے مقاصد اور یزید کے مظالم کو کربلا کی اسیر خواتین نے دنیا پر آشکار کیا. تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ جس نے نام نہاد اسلامی معاشروں کو حقیقت اسلام سے روشناس کرایا اور تاریخ اسلام کو حیات ابدی کے رنگ میں رنگ دیا، وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے. یہ قیام ان مردوں اور خواتین دونوں کی فداکاریوں اور جانثاروں پر مشتمل ہے جو پوری دنیا کے مسلمان مرد و زن بلکہ ہر انسان کے لیے نمونہ عمل اور مشعل راہ ہیں. کربلا کے واقعات کو زندہ و جاوید بنانے میں حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، اسیران اہل بیت اور کربلا کی دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں کا اہم کردار رہا ہے. کسی بھی تحریک کا پیغام عوام تک پہنچانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کربلا کی تحریک کے پیغام کو عوام تک کربلا کی اسیر خواتین نے پہنچایا ہے. جناب زینب کے بے مثال کردار، قربانیوں اور خطبوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے. کربلا کی ان مثالی خواتین نے ملوکیت کی پروردہ قوتوں کے مقابل اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے سواگوں کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا. واقعہ کربلا کو بے نظیر و لاسانی بنانے میں خواتین کربلا کے بے مثل اثار سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے نصاروں مجاہدین کو ان کی ماؤں نے ہمت اور حوصلہ دیا کہ تم سے زیادہ قیمتی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن ان کو نقصان پہنچا دے. اگر ایسا ہوا تو ہم روز محشر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ ان عظیم ماؤں کی ہمت تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایک نے اپنی عمر بھر کی کمائی جناب علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے لیے عظیم مشن پر قربان کیا، تو جناب رباب سلام اللہ علیہ نے اپنے 6 ماہ کے ننھے شیر خوار کو امام کا مجاہد بنا کر پیش کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا. حضرت زینب قوت برداشت اور صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی 3 اہم ذمہ داریوں کا آغاز ہوا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی کے ساتھ نبھایا. سب سے بڑی ذمہ داری حضرت سجاد کی تیمارداری اور دشمن سے ان کی حفاظت. دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت جو بیوہ ہو چکی تھیں اور بچے یتیم. تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا. دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے کا جو ارادہ حضرت امام حسین گھر سے لے کر نکلے تھے اس کو انجام تک کردار اور گفتار کے ذریعے زینب سلام اللہ علیہ نے پہنچایا. انہی کی سربراہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام کی گلی کوچے میں اپنے خطبات کے ذریعے یزیدیت کے ظلم کا پردہ چاک کیا اور رہتی دنیا تک سلام اللہ علیہ ہیں جنہوں نے دوران اسیری کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دیے. انہوں نے اپنے خطبوں میں جہاں کوفیوں اور شامیوں کی امام حسین سے بے وفائی کی مذمت کی وہیں حرم رسول کی طرف نگاہ کرنے سے شدت سے منع بھی کیا. آپ کوفہ میں ایک خطبے کے دوران فرماتی ہیں، اے کوفے والوں، کیا تمہیں خدا و رسول سے شرم نہیں آتی کہ تم حرم رسول کی طرف نگاہ کر رہے ہو. محرم الحرام میں عزادار شہدائے کربلا سے اظہار محبت کے لیے مختلف تبرکات خریدتے ہیں. ان تبرکات کی دستیابی کے لیے شہر بھر میں سٹال سجائے جاتے ہیں جن کا مقصد واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنا ہے. رپورٹ کریں گے عبد المجید باٹی. محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کبیر والا کے مختلف مقامات پر تبرکات کے سٹال سج گئے ہیں جن پر علم، جھولا، کڑے، تلوار، سبیل اور نیاز کے لیے دیگر سامان فروخت کیا جا رہا ہے. علم میں شبیہ علم ہے، شبیہ زجلا ہے، شبیہ تابوت ہے. یہ اسباب عزا ہے، غم کو تازہ کرنے کی چیزیں ہیں
और इसी अनवान से ही ये चीज़ें लाई जाती हैं, ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ये चीज़ें सजाई जाती हैं। इसीलिए हर वो काम जिससे हुसैन इब्न अली की कुर्बानी ज़िंदा होती हो, ज़िंदा रहती हो, या उसकी इशाअत में, उसकी तरवीज में मददगार साबित हो, ये मुनासिब और इंतहाई बेहतर तरीक़ा है। और मोमिनीन भी इसी अनवान से ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इसकी अहमियत इसी हवाले से। अज़ादारों की बड़ी तादाद मुहर्रम उल हराम की इन तैयारियों में तबर्रुकात खरीदती नजर आ रही है, जबकि स्टॉल पर अज़ादारी का सामान फरोख्त करने वालों का कहना है ये अलम पाक खड़ता है, छतरी वाला, बल्ब वाला, ये इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादा चलता है। और गाल का लाकट है, ये भी इस्तेमाल होता है। कपड़े वाला है या लिखाई वाला, वो भी इस्तेमाल होता है, वो भी चलता है। और कड़ी या इमाम गाजियाबाद थी, वो भी चलता है। मुहर्रम उल हराम के दिनों में ज़ायरीन अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए इन स्टॉल से तबर्रुकात खरीदते रहेंगे और इस तरह दुकानदारों के रोजगार में भी इजाफा होगा। वैसे तो हर चीज ये मुतबर है, आला है, लेकिन मैं अपने घर के लिए चिराग और आलम पाक लेके जा रहा हूँ, जो इसी चिराग करूँगा। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मुहर्रम उल हराम में आज़ादार शहदाए करबला से इजहार मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ तबरक़ात खरीदते हैं। इन तबरक़ात की दस्तयाबी के लिए शहर भर में स्टॉल सजाए जाते हैं। और अब आपको बताएं, चिन्योट में निकाले जाने वाले 9 ताज़िए कारीगरी और नफासत की अजीम मिसाल हैं। यही वजह है कि मुहर्रम उल हराम में पूरी दुनिया से लोग उन ताज़ियों की ज़ियारत करने के लिए चिन्योट का रुख करते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। जिला चिन्योट में निकाले जाने वाले ये 9 ताजियाजात इंतहाई कारागरी और नफासत की अजीम मिसाल हैं। यही वजह है कि मुहर्रम उल हराम में पूरी दुनिया से लोग इन ताजियाजात की ज़ियारत करने के लिए शहर चिन्योट का रुख करते हैं। इन ताजियाजात की ऊंचाई तकरीबन 80 फुट और चौड़ाई तकरीबन 20 फुट तक है और एक ताजिया 12 मनाजिल की तर्ज पर बनाया गया है, जिसका मकसद 12 इमामों से तशबीह देना है। इन ताजियाजात को उठाने के लिए लकड़ी के बांसों का इस्तेमाल किया जाता है और एक ताजिया को 100 के करीब लोग उठाते हैं। ताजियाजात में कई ऐसी नायाब चीजें बनाई गई हैं जो करबला के गम और नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका की कुर्बानियों की याद दिलाती हैं। 10 मुहर्रम उल हराम को ये ताजियाजात अपने मुकाम से उठाकर तिरखाना वाला मैदान में इकट्ठे किए जाते हैं। इन ताजियाजात के हमरा जुलूस और मातमी संगतें भी होती हैं। मैदान तिरखाना वाला में जब ये ताजियाजात इकट्ठे होते हैं तो इन ताजियाजात को देखने के लिए मोमिनीन की एक बड़ी तादाद मैदान का रुख करती है। इस मौके पर ज़िले इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चिन्योट। जुलूस अज़ा में उठाया जाने वाला अलम अब्बास असल में अलम इस्लाम है। अलम अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुफ़का की जयत और यजीदी अफकार की हार समझा जाता है। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। वफा की बुलंदियों पर जब नजर डालें, जनाब अब्बास सलमदार वहाँ खड़े नजर आते हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हजरत अब्बास फजलो कमाल, कुव्वत और जमाल में अपनी मिसाल आप हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हजरत अब्बास को मैदान करबला में लेकर आए तो आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से मोहब्बत की ऐसी दास्तान रकम की जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसलिए जंग करबला में हुसैनी सिपाह की अलमदारी का मनसब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को दिया गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को दिया जाने वाला अलम असल में अलम इस्लाम है। ये अलम इस्लाम मुख्तलिफ अदवार में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब लड़ी जाने वाली गज़वात में इस्लामी मुजाहिदों के हाथों में रहा। कभी हजरत हमजा के हाथों ने इसे ज़ीनत बख्शी तो अक्सर हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथों में रहने का भी शर्फ हासिल रहा। जंग करबला के बाद अलम को अलम अब्बास कहा जाता है। इस अलम के बुलंद रहने को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रफ़का की जीत और यजीदी अफकार की हार के तौर पर देखा जाता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। मुहर्रम उल हराम के महीने में नयाज तकसीम करने के लिए खास किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक से ये बर्तन खरीदते हैं। ये बर्तन कैसे तैयार किए जाते हैं, देखते हैं शहबाज मदनी की ये रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम के महीने में न्याज तकसीम करने के लिए खास किस्म के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी के इन बर्तनों, कुजियों, ठूठियों और प्यालियों की मांग बढ़ जाती है। कारीगर दिन रात इसकी तैयारी में मगन नजर आते हैं। मुहर्रम उल हराम में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ने से इनका काम भी खूब चलता है। कारीगर का कहना है मिट्टी को छानने के बाद गूंदा जाता है और हाथ की महारत से बर्तन की शक्ल देता है। पहले मिट्टी कुट्टी दा वा, फिर छानी दा, उसके बाद गुंद के फिर बर्तन बनाई दिया, कुजियां ठूठियां वगैरह। मुहर्रम उल हराम के महीने ज्यादा लोग लेके जाते हैं। मुहर्रम उल हराम के महीने में बच्चे बड़े सभी शौक से ये बर्तन खरीदते हैं। बच्चों का कहना है कि वो हर साल ये बर्तन खरीदते हैं और न्याज पाक तकसीम करते हैं। हम हर साल ये बर्तन खरीदते हैं
اور ان में न्याज तकसीम करते हैं। इससे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। ये खास किस्म के बर्तन बनाने के लिए बहुत ही महारत की जरूरत होती है। जहाँ कारीगर इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं, वहीं इस काम से कदीम फन भी जिंदा है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज समंदरी। विहाड़ी में भी मुहर्रम अल हराम के दौरान काफिला हुसैनी को पुरसा पेश किया जा रहा है। शहरियों ने प्यासों की याद में जगह जगह दूध और ठंडे पानी की सबीलें रखी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी मुहर्रम अल हराम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम अहले इस्लाम नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन से अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुहर्रम के मौके पर अवादार और अहले इस्लाम शहर भर में वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम कर रहे हैं, जहाँ से तमाम अवादार लंगर खाते हैं और पेट भर के सबीलों से दूध और मीठा पानी पीते हैं। शहरियों ने दर्जनों मकामात पर दूध और मीठे पानी की सबीलें लगाकर खैरात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद किया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। शहजादा कासिम की शबी है जो अरसा दराज से तकरीबन 40-50 साल से इस बरमकाम मफ्तर के निकलती है, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते से होती हुई मरकजी इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पज़ीर होती है। इससे पहले कि यहाँ सबीलें भी लगाई जाती हैं और लंगर न्याज का भी वसी इंतजाम होता है, जो बाहर से आए हुए मोमिन के लिए हम तकसीम करते हैं। बील लगाई हुई है ये मुसाफिरों के लिए, जुलूस के लिए। मौला इमाम हुसैन इस्लाम दी अब्बास दी और शहजादा कासिम दी अज मेहदी जड़ी है जनाब शहजादा कासिम इस्लाम दी बरामद हुई है। जिस तरह अहले इस्लाम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसी तरह वसी पैमाने पर अहले इस्लाम की जानिब से लंगर और सबील का भी एहतमाम किया गया है। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लग, सच न्यूज विहाड़ी। मुहर्रम शुरू होते ही मुसलमान शहर खामोशा का रुख करते हैं, अपने प्यारों की कब्रों की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते हैं और मनो मट्टी के नीचे दफन अपने प्यारों से मोहब्बत का सबूत देते हैं। रिपोर्ट करेंगे मेहर मोहम्मद अमीन। मुहर्रम अल हराम के आगाज से कब्रिस्तानों में लोग अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत और सफाई सुथराई के लिए आना शुरू हो जाते हैं। कोई कब्रों पर मट्टी डाल रहा है तो कोई घास उखाड़ रहा है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर गुलाब की पत्तियां डालकर मगफरत की दुआएं मांगते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि यौम अशूर पर मरहूमैन की कब्रों पर मट्टी डालने का सवाब ज्यादा होता है। मुहर्रम अल हराम का ये महीना है और यहाँ पे कब्रिस्तान में आकर कब्रों पे मिट्टी डालना ये अच्छी बात है, इससे दिल को सुकून होता है और ये एक इस्लामी अकीदत भी है। यूं तो लोग सारा साल कब्रिस्तानों में आते रहते हैं, मगर मुहर्रम अल हराम का यौम अशूर दीन इस्लाम के लिए शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है और इनकी याद करते हुए कब्रों की सफाई सुथराई, मट्टी डालने और कब्रों की मरम्मत करने का फरीजा खास तौर पर मुहर्रम अल हराम में रस्म समझकर अदा की जाती है। ये जो मुहर्रम का महीना है, इसमें सभी लोग आते हैं, फूल के चढ़ावे चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं अपने बड़ों के लिए, अपने इस वजह से ज्यादा रुझान होता है इधर। इस मौका पर जहां लवाकीन अपने प्यारों के लिए दुआएं करते हैं, वहीं पर शहदाए करबला इस साले सवाब के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हैं। मुहर्रम अल हराम में यही सिलसिला है कि मनो मट्टी के नीचे रहने वालों के साथ रिश्ता इनके जाने के बाद भी कायम रहता है और हर कोई अपने तौर पर हाजिरी देकर अपना फर्ज अदा करता है। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। इलाकाई खबरनामे से फल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk और देखते रहिए सच।